गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे वी विल सी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Heterotrophic mode of nutrition we have already discussed in the offline classes, so we will see it fastly. Okay, see, heterotrophic mode of nutrition, the mode of nutrition in which an organism takes food from another organism, means the organism is unable to prepare its own food, and it depends on others for its food. ठीक है, this type of nutrition is called heterotrophic nutrition. The example of this, the animals that belongs to heterotrophic nutrition are, for example, human beings and other animals, microorganisms. These all are heterotrophic. They all possess heterotrophic nutrition. Okay, only green plants and some bacteria possess autotrophic mode of nutrition. Blue green algae is also you can consider in green plants. So algae also looks like green plants. So blue green algae and green plants and some sulfur containing bacteria are autotrophic, and except that all are heterotrophic. Okay, now heterotrophic nutrition is of three types. I have already told you in the offline classes that heterotrophic nutrition is of three types. First, saprotrophic, second holozoic, and third is parasitic. So I have already given the definitions also in the offline classes, but still I am again giving you the definitions of all the three types of heterotrophic nutrition, and you have to write all these in your fair notes copy. Okay students, so see, what is saprotrophic mode of nutrition? Saprotrophic mode of nutrition. In saprotrophic mode of nutrition, the organism secretes the digestive juices on the food. Suppose this is food, the organism secretes the digestive juices on this food. Which organism? The very microscopic organism like bacteria and fungi, they secrete the digestive juices on this food, and the food is digested while it is still ingested. Okay, the food is digested. ये फूड जो है ये बाहर में ही डाइजेस्ट हो जाएगा. इट विल बी डाइजेस्टेड देन एंड देयर ओनली, एंड देन द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स विल बी टेकन बाय दिस. सपोज दीज आर द बैक्टीरिया, दीज आर द फंजाई, so this digested part will be taken by this bacteria and fungi, these microorganisms. ठीक है, so the digested food is then ingested by the organism. All the decomposers, who are decomposers? Bacteria and fungi, you already know, follow saprotrophic mode of nutrition. Some insects, houseflies also follow this mode of nutrition. So in simple way, if you want to write the definition, you can write that the mode of nutrition in which the organisms or the decomposers depends on the dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. ठीक है, now we will see, first we will see parasitic mode of nutrition. First, what we will see? Parasitic mode of nutrition, because holozoic mode of nutrition we have to study in detail. Okay, so first we will see parasitic mode of nutrition. So the organism which lives inside or outside the organism, that is host, and derives nutrition from it is known as parasitic, and this type of this mode of nutrition is called parasitic mode of nutrition. Very common example is cuscuta. Cuscuta, you can also say the another name of cuscuta is dodder. cuscuta को हम लोग dodder के भी नाम से जानते हैं, और अगर आप इसको हिंदी में बोलेंगे तो इसको अमर बेल बोलते हैं. ठीक है, आप पेड़ों के ऊपर देखते हैं जाल टाइप का एक येलोइश टाइप का आपको दिखेगा, वो एक्चुअली कोई प्लांट नहीं होता, वो पैरासाइट होता है. वो पैरासाइट होता है, जिस भी पेड़ के ऊपर वो लग जाता है उसका पूरा न्यूट्रिशन ले लेता है, उसको सुखा देगा और फिर वो दूसरे प्लांट के ऊपर अपना न्यूट्रिशन लेने चला जाएगा. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डॉडर, cuscuta, teak also you know, and the louse that lives in your hair, on your head, it also possesses the parasitic mode of nutrition, and it feeds on your blood, it takes nutrition from your blood. So
This is parasitic mode of nutrition. So in simple way we can define that the type of mode of nutrition in which organism derive the food or derive the nutrition from its host by harming it. Okay, organism derive its food from its host and also harms the host. So this is known as parasitic mode of nutrition. Okay students, now holozoic mode of nutrition. In holozoic mode of nutrition, the digestion happens inside the body of the organism. That is, after the food is ingested, most of the animals follow these mode of nutrition. The type of nutrition in which first the food is ingested and inside the body digestive juices are secreted which digest the food and then it is absorbed, assimilated and the extra part is ingested. So holozoic mode of nutrition, most of the animals follow this type of nutrition. Most of the animals, even some unicellular organism also follow holozoic mode of nutrition. So can you now we will see what are the different steps in holozoic mode of nutrition. ठीक है, कैसे हम देखेंगे. फर्स्ट वी विल टेक वन एग्जाम्पल दैट इज अमीबा, देन वी विल स्टडी द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. सो लेट्स सी विथ एन एग्जाम्पल न्यूट्रिशन इन अमीबा. न्यूट्रिशन इन अमीबा. नाउ टुडे वी विल सी न्यूट्रिशन इन अमीबा. तो अमीबा ऑल्सो हैव होलोजोइक मोड ऑफ nutrition. Okay, means the nutrition human beings follows that also possessed by this unicellular organism. You already know the amoeba. So this unicellular organism also possesses the same type of nutrition that we possess, that the human being possesses. Okay, so which mode of nutrition is this? Holozoic mode of nutrition. देखिए क्या क्या होता है अमीबा में. अमीबा is an unicellular animal which follows holozoic mode of nutrition. Okay, in holozoic mode of nutrition the digestion of food follows after ingestion. सबसे पहले इंजेशन, हम फूड को इंजेस्ट करेंगे अपनी बॉडी में. हम खाना खाते हैं ना मुंह से, उसी तरीके से अमीबा भी इंजेस्ट करता है. कैसे इंजेस्ट करता है वो हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे. दस डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैपन्स इन 5 स्टेप्स. 5 स्टेप्स में होता है. कौन कौन से 5 स्टेप्स? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. ये 5 स्टेप्स आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. ठीक है, अब देखिए ये तो आपका हो गया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, ओके स्टेप्स. अब देखिए अमीबा कैसे कैसे न्यूट्रिशन करता है, उसमें अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है. ठीक है, सपोज कि ये अमीबा है. अमीबा का तो आप स्ट्रक्चर जानते हैं, कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है. तो दिस इज अमीबा. ठीक है, दिस इज सम फूड पार्टिकल. कोई फूड पार्टिकल उस अमीबा के पास आ गया है. दिस इज दिस वन इज फूड पार्टिकल. ठीक है, अब ये अमीबा क्या करेगा? अमीबा के ये जो ये है ना, ये बम्स लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड सीडोपोडिया. तो ये अपने सीडोपोडिया को देखिए, सीडोपोडिया को अपने उसके चारों तरफ फूड के इस तरह से ले जाएगा और सीडोपोडिया को उसको ले जाके पूरा चारों तरफ इस तरह का फूड वैक्यूल बना लेगा. इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल. फूड अब इसके अंदर आ गया, आप देख सकते हैं. दिस इज द फूड पार्टिकल. सी, दिस इज द फूड पार्टिकल. ठीक है, किसके अंदर आ गया? फूड वैक्यूल के अंदर. अब क्या करेगा अमीबा इसके ऊपर? लेट मी चेंज द कलर. इसके ऊपर अमीबा क्या करेगा? अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम इसके ऊपर रिलीज़ करने लगेगा. दिस फूड पार्टिकल के ऊपर ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करेगा और डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करने की वजह से जो है इसमें क्या होगा? ये फूड यहीं अंदर फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्ट होने लगेगा. और डाइजेस्ट होने के बाद अमीबा क्या करेगा इसको? स्टूडेंट्स, अमीबा विल टेक अप द एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन. डाइजेस्ट हो गया, स्मॉल पार्टिकल्स में टूट गया न्यूट्रिशन. जो कार्बोहाइड्रेट था उसमें, जो प्रोटीन्स था, जो फैट्स था, वो सब स्मॉल पार्टिकल में टूट गया. तो वो जो भी उसका न्यूट्रिशन हुआ वो अमीबा इट विल एब्जॉर्ब इन इट्स बॉडी. और फिर जो कचड़े मतलब फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, जो चीज़ें डाइजेस्ट करनी थी वो तो डाइजेस्ट हो गया. अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो उसको नहीं चाहिए, इट विल थ्रो इट आउटसाइड. तो सपोज दिस इज़ द अनडाइजेस्टेड फूड. ये अनडाइजेस्टेड फूड आउटसाइड में फेंक देगा. ठीक है, तो ये हो गया 5 स्टेप्स. इजेशन, डाइजेशन,
देन फिर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद फूड फिर वो अपनी बॉडी के लिए एनर्जी बनाने के लिए यूज़ भी करेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन. एंड देन इजेशन, इजेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड पार्टिकल. Okay students, this is how nutrition occurs in amoeba. This is how amoeba takes its nutrition. ठीक है, देखिए क्या क्या है डिफरेंट स्टेप्स, इसको पढ़ लीजिए आप लोग ध्यान से, ये स्टेप्स आपको एग्जाम में आ सकते हैं. इजेशन, इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड. इंजेशन किस प्रोसेस को बोलते हैं? जिस तरह से हम फूड लेते हैं. अब अमीबा दूसरे तरीके से लेता है, हम माउथ के थ्रू खाते हैं. डाइजेशन किसको बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स. जो प्रोसेस फूड को ब्रेक करने में हेल्प करता है. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन. मीन्स कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ने के प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स में जो कॉम्प्लेक्स फूड है जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये और सिंपल फूड में टूटेगा. ठीक है, उसके बाद फिर जो है प्रोटीन, इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स. फैट्स, इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स. तो ये सिंपल पार्ट में टूट जाएगा. ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स फूड, हमारे बॉडी का कोई वो नहीं है कि हम कॉम्प्लेक्स फूड उसको एब्जॉर्ब कर सकें. हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, ना अमीबा की बॉडी. ठीक है, तो वो सिंपल पार्ट में टूट गया. अब सिंपल पार्ट में डाइजेस्ट होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा. ठीक है, अब नाउ द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. डाइजेस्टेड मीन्स टूटा हुआ फूड, सिंपल पार्ट में टूटा हुआ फूड, इट विल बी डाइजेस्टेड इन द बॉडी. नाउ व्हेन इट विल बी एब्जॉर्ब्ड आफ्टर दैट क्या होगा? एसिमिलेशन. द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी, फॉर ग्रोथ एंड फॉर रिपेयर. जो डाइजेस्टेड फूड है, जो एब्जॉर्ब हो गया है, अब उसको डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए जो यूज़ होगा उसी को बोलते हैं एसिमिलेशन. देन व्हाट विल हैपन? इजेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी. अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर इजेस्ट कर देने के प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका होगा how steps occurs in holozoic nutrition and how the nutrition occurs in amoeba. ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आपको पता है किस तरह से वो फूड लेता है. दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. ओके, कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. तो आप लोग इसको ज़रूर एक बार इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, तभी आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आएगी. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स काफ़ी अच्छी टॉपिक है. आपको अपने बारे में पता चल रहा है कि किस तरह से हम खाना खाते हैं और फिर बॉडी में जाने के बाद उस खाने का क्या क्या होता है, ये हमको कल पढ़ना है. तो कल की टॉपिक हमारी बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से आप रीडिंग कर लीजिएगा. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.